Hello students, good morning everyone. Today we are going to complete the Act 4 of um, Act 4 of tragedy Macbeth, and we are starting with the scene first. And we see here that in this scene opens with the witches performing a ritual around a boiling cauldron, and it is hoped that by performing this ritual, they might get something wicked ideas which will help them to misguide the Macbeth in future. And for that, they are preparing that rituals and they are performing the rituals. And uh, meanwhile, when they were performing the rituals, Macbeth comes there and he demands to know the answers to his questions, and the witches summon their masters to respond. And first, Macbeth is want to be where Macduff when his masters, I mean the master of witches, comes there, and he was that Macbeth was answered in different ways. First answer which was given by witches is that the be aware of Macduff, and again mm, Macbeth asks them what the next, and then they say that no one born of woman can harm him, and finally he is told that he will never be vanquished till Birnam comes to Dunshan. So all these three predictions about Macbeth make him more confident, and he is no more worried about his future. तो ये जो सीन है फोर्थ वाला, इस यह सीन एक यूँ कहें हम कि एक रिचुअल्स जो हैं, एक कुछ परफॉर्मिंग सा, कुछ तांत्रिक क्रिया जैसे करती है, वो करते हुए विचेज़ को दिखाते हुए शुरू होता है कि तीनों जो विचेज़ हैं वो कुछ तांत्रिक क्रियाएं कर रही हैं, और ये क्रियाएं इसलिए कर रही हैं कि जब मैकबेथ उनके साम पास आएगा तो वो उनको कुछ अच्छे से आइडिया जो कि उसके ज़्यादा विकेड आइडिया हो, उसको उनके पर्पज़ की ओर गलत का मतलब मानवता को नुकसान पहुंचाने की ओर उसको अग्रसर कर सके, ऐसे आइडिया उनको दिमाग में आए, इसलिए वो विचेज़ कुछ रिचुअल परफॉर्म कर रही है। और उनके रिचुअल परफॉर्म करते हुए मैकबेथ वहाँ आता है और वह उनसे क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट अबाउट माई फ्यूचर। और जब ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो विचेस उनको उसको उनके मास्टर को आह्वान करती है, मास्टर को बुलाती है, और मास्टर कुछ आंसर मास्टर देता है, कुछ आंसर वहाँ जो ऑपरेशन क्रिएट होते हैं वो देते हैं। तो पहला जो आंसर दिया जाता है वो कहा जाता है कि बी अवेयर ऑफ मैकडफ, की तो मैकडफ से सावधान रहना। और जब वो पूछता है और तो फिर वो बताते हैं कि कोई भी जिसका जन्म महिला से हुआ है वह तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। और लास्ट में जो बताया जाता है कि जब तक जो बिरनम वुड हैं, बिरनम वुड एक जंगल का नाम है, वो चल करके मैकबेथ का जो कैसल है डंशियन वहाँ उस तक नहीं आता है, तब तक उसे कोई खतरा नहीं है। और ये जो तीनों जो भविष्यवाणी है मैकबेथ के बारे में उन विचेस के द्वारा, राक्षसों के द्वारा या प्रेतनियों के द्वारा, वो उसको बिल्कुल ही निडर बना देती है, वो फिर अपने भविष्य की चिंता करना बंद कर देता है। तो ये इसका एक्ट फोर्थ का जो है वो सार है, इट इज़ द थीम। एंड नाउ वी आर स्टार्टिंग इट विथ दिस विथ सीन वन बाय वन। So first scene, the last two prediction fill him with confidence and hope that Macbeth is still anxious to know if Banquo's children will become kings. And a line of 8 kings appear with Banquo at the rear of the procession. The witches disappear after performing a dance, leaving the dismayed Macbeth alone. And then Lennox appears there and announces that Macduff has fled to England. This surprises Macbeth, and he uh, vows to have everyone at Macduff's castle, wife, children, and servants, and they all are killed by Macduff's person. So, dear students, in first scene we see that these that these witches were performing uh, performing some rituals there, and when Macbeth asked them about Banquo's children, then there we see apparition appears there,
and in that apparition there were 8 kings one by one coming in front of them in the form of procession. And meanwhile these witches also disappear from there. And as the witches disappear, Lennox, who is also a journal there, who is also he comes there and he reports Macbeth that Macduff has fled to England. And hearing this, Macbeth became furious. He was so angry with the Macduff, and he orders to kill all the beloved persons, all the people of the family of Macduff to kill. And the people of Macbeth go there and they kill them. So in this way, this is this events happens in the act first. तो जो है मैकबेथ पूछता है कि बैंकों के बच्चों के बारे में पूछता है, तो वहाँ एक अपरेशन एक क्यों कह सकते हैं कि छायाओं में एक दृश्य सा उत्पन्न होता है जिसमें एक के बाद एक 8 किंग जाते हैं और वो बैंकों के जैसे लाइनेज हो उस तरह से दिखते हैं कि बैंकों के एक के बाद एक 8 बैंकों के फीचर्स होते हैं वहाँ पे, अलग अलग आकृतियाँ होती है जो बैंकों से सिमुलेट करती है। तो ऐसा लगता है कि बैंकों की जो जनरेशन है वो 8 जनरेशन राज्य करेगी। और जब मैकबेथ पूछता है तब तक वो वहाँ से सब जो वो प्रतिछाया जो सब गायब हो जाती है। और उसी समय लेनॉक्स जो है वह वो भी एक जनरल है, आर्मी में रहता है और मैकबेथ किंग है तो उसको इन्फॉर्म करने आता है कि मैकडफ है वो इंग्लैंड भाग गया है। और मैकबेथ गुस्से में कहता है कि मैकडफ के पूरे परिवार को ख़त्म कर दिया जाए, और लोग जाकर के मैकडफ के पूरे परिवार को मार देते हैं। तो ये जो है एक्ट 4 का सीन फर्स्ट है। एंड नाउ सी व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस what is the significance of this act and what another literary meaning we get here. So earlier in the play we come to know when Banquo says to Macbeth in our previous act that these are the instrument of darkness, mean the witches have been addressed as instrument of darkness, and what do they? Win us with honest trifles to betray us in deepest consequences. So this suggests that we should not take face value anything that the witches say. On the surface, the two prophecies after Macbeth's assurance of invulnerability, how else might have the prophecies be interpreted? What of other meanings could be words have had? तो ये जो हम शुरू में बैंको जब ये फर्स्ट में जब मिलते हैं विचेस से, जिसमें बैंको और मैकबेथ दोनों साथ होते हैं, तो बैंको कहता है कि दीज आर द इंस्ट्रूमेंट ऑफ डार्कनेस, विचेस आर द इंस्ट्रूमेंट ऑफ डार्कनेस, एंड ये जो है कि अंधकार के मतलब शैतान के साधन हैं जो मतलब लोगों को मिसगाइड करते हैं। वीनस विथ ऑनेस्ट ट्रिफल्स, ये कुछ आइडियाज इस तरह से कर करके कुछ थोड़े से स्वार्थ वाली चीज़ें ऐसी बता करके लोगों को अपने वश में कर लेते हैं, फेवर में कर लेते हैं, और फिर जो उनको कहना मान के चलता है वो बड़े बुरे रिजल्ट्स में फंसता है। तो दिस इज अगेन सीन इन दिस एक्ट कि उनको जो तीनों जो उसके बारे में जो भविष्यवाणी की गई है, कौन कौन सी, एक तो कोई भी महिला से जो जन्म लिया है वो उसको मार नहीं सकता है, उससे वो कभी नहीं हारेगा, और बिडनम वुड जब तक चल के डंसियान कैसल की तरफ नहीं आएगा तब तक उसका कोई नुकसान नहीं होगा। तो और फिर ये जो तीनों जो भविष्यवाणी हैं ये उसको मैकबेथ को बहुत निडर बना देती है, और वो अपने क्रूरटी और अपने क्या कहते हैं अपने विरोधियों को दबाने में और ज़्यादा प्रवृत्त हो जाता है। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ डार्कनेस जो हैं, ये विचेस जो हैं या शैतानी ताकतें जो हैं, ये हमेशा व्यक्ति को, मानवता को अलग दिशा में ले जाती हैं। दिस इज द सेंस ऑफ दिस एक्ट. So we will again read the second act there. Thank you.